And now we go to the other book, The Miracles of Your Mind, जिसमें हम कर रहे हैं we are doing the chapter Miracles and Health. और आज beautiful एक तो concept पढ़ेंगे एक paragraph में, और next में फिर एक experience है about some kind of an eye problem जो doctors ने बोल दिया था ठीक नहीं हो सकती है, वो कैसे miracle की तरह ठीक हो गई और उन्होंने क्या किया, ये दो चीजें हम आज पढ़ेंगे. So who's reading for us today? Good morning, ma'am. Bharti. Good morning. Hi, Bharti ji. Fine. How are you? I'm fine. How are you, ma'am? Bas, all good ji. Happy Diwali. Please start reading. Happy Diwali to you and happy Diwali to everyone. Okay. I start from similarly. Yes, similarly. Sorry, I'm on Okay. mute, so मुझे भी वो time. Okay. Similarly, your subconscious mind is the master mechanic, the all-wise one, who knows ways and means of healing any organ of your body, as well as your affairs. Decree health, and the subconscious mind will establish it. But relaxation is the key. Easy does it. Do not be concerned with details and means, but know the end result. Get the feel of the happy solution of your problem, whether it is health, financial, or employment, etc. Remember how you felt after you had recovered from a severe state of illness. Bear in mind that the feeling is the touchstone of all subconscious demonstration. Your new idea must be felt subjectively in a finished state, not in the future, but as now coming about. One of our students who attended our lectures on the miracles of the mind had severe eye trouble, which the doctor said necessitated operation. He was instructed how to use the Nancy School technique. Take a little phrase or affirmation easily graven on the memory and repeat it over and over again like a lullaby. Each night, this man, as he went to sleep, entered into the drowsy meditative state, the state akin to sleep. His attention was immobilized and focused on his eye doctor. He imagined the doctor was in front of him, and he plainly heard or imagined he heard the doctor saying to him, "A miracle has happened." He heard this over and over again every night for perhaps 5 minutes or so before going to sleep. At the end of the 3 weeks, he went to the ophthalmologist who had previously examined his eyes, and he said to this client, "This is a miracle. What happened?" He impressed his subconscious mind using the doctor as an instrument or a means of convincing or conveying the idea. Through repetition, faith, and expectancy, he impregnated the subconscious mind. The subconscious mind made the eyes. Within it was the perfect pattern, and immediately it proceeded to heal the eyes. This is another example of the miracles of your mind. Yeah, so these two paragraphs पहले वाले में हमने ये पढ़ा है जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको समझा रहे हैं कि कभी भी अपनी बीमारी के बारे में, सपोज देयर माइट बी अ डिजीज दैट्स ट्रबलिंग यू, okay, could be anything, could be a migraine headache, could be the vision going off, could be some cardiac issue, could be some lung issue, maybe bronchitis है, या कुछ भी, कोई भी चीज है जहां पे that we want to heal. So here Dr. Joseph Murphy is saying that don't give any energy to the disease at all. उसके बारे में सोचो ही मत, वो disease का नाम भी मत सोचो. Just stay calm.
That's what he says, that it is when you stay calm. Relaxation is the key लिखा हुआ है उन्होंने. So relaxation is the key means आपको बहुत relax रहना है ऐसे में, because easy does it. कोई भी चीज में अगर struggle आ रहा है ना, अगर आपको काम में भी स्ट्रगल आ रहा है, पैसे कमाने में स्ट्रगल आ रहा है, इसका मतलब है आपकी वहां पे एनर्जी बहुत नेगेटिव है. नहीं तो पैसा तो 100 चेन की तरह आता है, बिल्कुल झरझर झरझर झरझर, एक के बाद एक के बाद एक. मतलब बिकॉज मनी इज ओनली एनर्जी. सो जैसे हम जब वरी वाली एनर्जी या फियर वाली एनर्जी या लैक वाली एनर्जी जब जाती है, वी विल सी दैट हमारी हमारी वो चीज में सोल्यूशन नहीं आता है कभी भी. सो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है इजी डज इट, बी काम. और करने क्या है, यूर जस्ट काम, यूर जस्ट फोकसिंग कि मैं अपनी सांसों पे ध्यान दूंगा, बाकी सब पैसे भी आ जाएंगे, द हेल्थ विल ऑल्सो गेट बेटर और वट एवर इट इज. ओके. फिर उन्होंने ये भी समझाया है हमको दैट डू नॉट बी कंसर्न विद द डिटेल्स एंड मीन्स, कैसे होगा क्या होगा, जस्ट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट. आंखें सामने है ना, तो सामने आपको क्या चाहिए, आप बस वो देखो, वो सोचो, वो ही बोलो. सो थॉट्स वर्ड्स एक्शन सारे ऐसे होने चाहिए जहां पे आप हीलिंग, मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड हो. आप हीलिंग के बारे में, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हीलिंग, दैट थैंक यू दैट माय ब्लड पैरामीटर्स आर सो हेल्दी, आई एम फीलिंग सो एनर्जाइज्ड. ओके, इस बारे में सोचो. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, गेट द फील ऑफ द हैप्पी सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या आपके जॉब में आ रही है. जिस भी चीज में उसका हैप्पी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम क्या है. रिमेंबर हाउ यू फेल्ट आफ्टर यू हैड रिकवर्ड फ्रॉम अ सीवियर स्टेट ऑफ इलनेस. आपको ये एंड गोल देखना है. और जब फिनिश स्टेट के बारे में आप जितना ज्यादा सोचोगे, आप देखोगे दैट वो चीज हो जाएगी. जो भी आपके डोमिनेंट थॉट्स है, बिलीव मी, मेरे कभी कभी इतने वैसे वाले डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, बट वो सारे वैसे ही हो जाते हैं. सडनली ऐसी मैं पिक्चर, मुझे लगता है ओ हाँ, ये तो मैंने ये मेरे मन में आई थी 1 साल पहले, 6 महीने पहले, समथिंग लाइक दैट. और ड्रेस जो मैंने कहीं आउटफिट कहीं पे देखी होगी, ठीक है, आई सी माई सेल्फ वेयरिंग दैट आउटफिट एंड सडनली आई रिमेम्बर, अरे ये तो वही वाली है जो मैंने वहां पे इतने टाइम पहले देखी थी, बट आई डिडंट वांट टू टेक इट एंड इट जस्ट कम्स इनटू माय एग्जिस्टेंस. है ना, वो थॉट से एग्जिस्टेंस में आ जाता है सब कुछ. तो यहाँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझा रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की वर्कशॉप करी थी. ये एक्चुअली उस वक्त तो जूम और वो सब होता नहीं था, है ना, इंटरनेट वगैरह कुछ भी, तो यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी वॉज अलाइव. मतलब 70s में तो इनकी डेथ भी हो गई थी, मतलब वो हो गए थे, विलीन हो गए थे, इन्होंने भी समाधि ली थी ऐसे. डिसाइड किया था कि आई माई सोल शुड, इट्स टाइम आई लीव द बॉडी एंड टेक अ रीबर्थ, बिकॉज मेरी अब जरूरत, यहाँ पे मैंने सारा काम कर दिया है जिसके लिए मैं आया था. और ये क्या है कि वो, मतलब उनकी सोल ने छोड़ दिया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि कब सोल को छोड़ना है. तो 70s में तो वो चले भी गए थे. तो उन्होंने ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं ये 40s एंड 50s के बताएं. तो तब वो शिप से क्रूज ले लेके जाके अलग अलग देशों में जाके, वैसे वो ब्रिटिशर थे, तो अलग अलग जगहों पे जाके वो अपने लेक्चर्स देते थे. तो वहीं पे एक स्टूडेंट था जिसको आईज में बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने उसको बोला था कि तुम्हारे आईज को सर्जरी की जरूरत है, एंड इट नेसेसिटेटेड ऑपरेशन, मीन्स उसको सर्जरी की जरूरत है, उसके बिना ये ठीक नहीं होगा. लेकिन उस बच्चे ने, उस लड़के ने ये सोचा दैट एक एफर्मेशन अपने आप को बोलनी शुरू की, और उसको वो बहुत रिपीट करते थे, वो चैंट की तरह. ललेबाय का मतलब होता है लोरी गा के सोना, सोने के पहले लोरी गाते हैं ना, मतलब लोरी वर्ड जो हम यूज करते हैं, ललेबाइज आर जनरली स्पोकन, थॉट ऑफ, डन बिफोर समवन गोज इनटू स्लीप. सो उसने ललेबाय की तरह अपना एक एक चैंट बना रखा था, वॉट एवर इट वॉज, आई एम हीलिंग लाइक अ मेरिकल, आई एम हीलिंग लाइक अ मेरिकल. और जो उसका लास्ट थॉट होता था सोने के पहले, वो ये होता था कि उसका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आइज के डॉक्टर को बोलते हैं, तो उसका जो आइज का डॉक्टर था वो उसको ये कह रहा है, अ मिरेकल हैज हैपेंड. ये आवाज वो सुनता था अपने डॉक्टर की, कि डॉक्टर इसको बोल रहे हैं, ये जो स्टूडेंट था इसको बोल रहे हैं कि मिरेकल हैज हैपेंड, मतलब आपकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं. और ये करता रहा, और कितने दिन, ज्यादा नहीं किया इसने, सिर्फ 3 हफ्ते. 3 हफ्ते के बाद जब ये गया फाइनली अपने डॉक्टर से मिलने के लिए, 3 हफ्ते 21 days, डिड यू नोटिस. तो 3 हफ्ते के बाद जब ये अपने डॉक्टर से गया मिलने के लिए, तो वहां पे डॉक्टर ने उसको बोला, अ मिरेकल हैज हैपेंड, अ मिरेकल हैज हैपेंड. एंड इस तरह से एग्जैक्टली जो वो अपने आप को बोलता था, वो
सत्यवचन हो गए, बिकॉज डॉक्टर ने उसको एग्जैक्टली यही बोला, दिस इज अ मिरेकल, व्हाट हैपेंड। फिर उसने बताया कि उसने अपना सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रेस किया था डॉक्टर की उसको ये चीज बोल रहा है, और रिपीटेशन के कारण, फेथ के कारण, और एक्सपेक्टेंसी ऑफ द मैग्निफिसेंट आउटकम। एक्सपेक्ट क्या करते हैं? बहुत अच्छा आउटकम ऑब्वियसली, तभी तो हम रिपीटेशन कर रहे हैं। तो रिपीटेशन और फर्म फेथ के कारण उसको अपने सबकॉन्शियस पावर पे इतना भरोसा था। So having bharosa, having a strong faith is also very important. So when you keep repeating something to yourself, irrespective of what the outward reality is, ठीक है, आउटवर्ड रियलिटी कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन उस वक्त भी आप बोल रहे हो, आई नो दैट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी अ मास्टरपीस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ सुपर हेल्दी बॉडी, thank you universe that for filling my life with miracles. And when you constantly keep chanting about it, it becomes your true reality. जो दिमाग वाली चीज होती है, it becomes your true reality. And the subconscious mind that made the eyes, within it what was the perfect pattern, and immediately proceeded to heal the eyes. जिस फोर्स ने आंखें बनाई है, उस फोर्स को आंखों को रिपेयर करना भी आता है. The force that has made the eyes, the same force is universal force, okay, God. That force knows how to heal the eyes also. And this is another example of the miracles of mind. So now next chapter is going to be the subconscious mind and alcoholism. So I think we'll end it here. Thank you, Bharti ji, for reading so beautifully. Thank you so Okay, much, ma'am. thank you so much. And so thank you so much. Wish you all a very, very happy Diwali.